کوئی آپ ہم سے بھی سوال کریں نا, کوئی ایسا سوال کریں کہ ہم بھی سوچیں کہ ہمیں بھی دین کی کتنی معلومات ہے. ہم تو سوال کرنے آ گئے, ہمیں بھی تو ان کی معلومات آپ سے میں ایک آسان سا سوال کرتا ہوں, بالکل آسان سا. حضور پاک نے اپنے آخری نماز جو پڑھائی تھی اس میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ جو آخری نماز پڑھائی تھی اس میں کون سی سورت پڑھی؟ جی بالکل آسان سا سوال, بالکل. سورت فاتحہ؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں آپ لوگ ملک غلام عباس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل AM عباس ریوی. دوستوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ بیٹھے ہیں نکاح پیر جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت وائرل ہے, اور ان کی جو خصوصیات ہے یعنی کہ جو ان کو پہچانا جاتا ہے, لوگ پہچانتے ہیں, وہ ہے ان کے دم درود کرنے سے. اور یہ دم درود بھی کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہ جو ہے بہت مشہور بھی ہے. تو ان سے پوچھیں گے آج ہم لوگ کہ آپ دم درود کرتے ہیں, یا ان سے کچھ چند سوالات ایسے ہیں جو ہم ان سے کریں گے. کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ جو ہے کچھ ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی تھی, ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے. سب سے پہلے کرتے ہیں سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو نکاح پیر جناب, آپ کو ہم جناب بولیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. نہیں بڑی مہربانی. ہم آپ کے پاس آئے ہیں بڑا سفر کر کے کوٹ منٹ شہر سے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر کچھ چیزوں کی معلومات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمیں پوچھنی تھی نکاح پیر سے, اور آج ہم آئے وہ انشاءاللہ نکاح پیر سے پوچھیں گے. تو نکاح پیر صاحب ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے, دین اسلام کے متعلق سوالات کریں گے. حکم فرمائے, کوئی مسئلہ نہیں, حکم فرمائے. تو کہیں ایسا سوال تو نہیں ہوگا ہم سوال کریں آپ سب کے جواب دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ دیکھیں, جو میرے علم میں ہوگا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. جو میرے علم میں نہیں ہوگا, ایسے میں آپ کو غلط بات بتاؤں دے, وہ میں نہیں بتاؤں گا. کیونکہ علم سمندر ہے, اب پوری دنیا کا علم تو میرے اندر نہیں ہے نا. جو میرے علم میں ہوگا انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کا کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ جس سے پبلک کی, عوام کی دل آزاری ہو. انشاءاللہ ہم آپ سے وہ سوالات کریں گے جو پبلک تک جانا ضروری ہے, جو پبلک کو معلومات ہونا ضروری ہے. حکم فرمائیں. سب سے پہلے تو ہم آپ سے ایک بات کریں گے کہ آپ الحمدللہ ہر بات پہ خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, تو یہ رب کی رحمت ہے. یہ آپ لوگوں تک پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ ہر بات پہ خوش ہوتے ہیں, اس کا آپ بتائیں کہ یہ کس وجہ سے ہے. جی الحمدللہ خوش ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں نا کہ بات کرے کہ بندہ رونے پہ جائے, نہیں, الحمدللہ ہنستے رہتے ہیں, ہم خوش رہتے ہیں, کیونکہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور ہونا بھی ایسے چاہیے, بندہ ہر کسی کے ساتھ خوش ہو کر ملے, بندہ ہر وقت مسکراتا رہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو کریں آپ سے سوال, آپ کی اجازت ہے؟ حکم فرمائیں. ماشاءاللہ. دیان بھائی سے ہم سوالات کرتے ہیں. دیان بھائی ہمارا سب سے پہلا آپ سے جو سوال ہے, ہمارا سوال یہ کہ ہمارے آقا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی اور ان کے کیا کیا نام تھے, آپ ہمیں بتا دیں. آپ سنا دیں پورے. بسم اللہ. بسم اللہ. آپ کو میں بتاؤں کہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, میں ان سے آپ سے سوالات کرنے آیا تھا. جی آپ کو پورے یاد ہیں تو آپ پبلک کو سنا دیں. چلو دو میں سے کسی کو تو آتے ہونا. بالکل, آپ کی بات اچھی ہے. اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ بتایا تو آپ دیان بھائی کے چینل پہ جائیں گے اور وہاں پر دیں, کیونکہ مجھے بھی پوری ان کی معلومات نہیں ہے. چلو ہم آپ سے ایک سوال اور کرتے ہیں. جی حکم فرمائیں. آپ ہمیں سب سے پہلا سوال یہ بتائیں کہ آپ سوشل دوسرا سوال آپ بھول رہے ہیں, ہو گیا دوسرا سوال. آپ ہمیں دوسرا سوال بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو کام کریں کس وجہ سے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ پیسہ کمانا کا مقصد ہے یا کیا وجہ ہے, آپ بتائیں. یہ پیسے تو بھائی آپ نے کمانے ہیں, آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. بالکل, پیسے تو آپ نے کمانے ہیں. بالکل, ہم نے تو جو آتا ہے وہ ویڈیو بنا جاتا ہے, پیسے تو انہوں نے کمانے ہیں, ہم نے تو نہیں کمانے نا. نہیں, جس طریقے سے آپ کا بھی سوشل میڈیا پہ چینل بنا ہوا ہے. جی آپ ہمارا چینل دیکھیں, ہم نے اپنے چینل پر وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہمارے چینل سے جو بھی انکم آئے گی ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. باقاعدہ ہم نے ویڈیو بھی لگائی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ. باقی پیسے تو آپ نے کمانے ہیں, جو آپ ویڈیو بنا کر جا رہے ہیں. ہم نے جو کمانے ہیں وہ تو الحمدللہ ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہم نے وعدہ لیا ہے, ہمارے یوٹیوب چینل پر باقاعدہ کئی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ ہم ویڈیو میں اتنا شو نہیں کرواتے جتنا ہم غریبوں کو بانٹتے ہیں. اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے کسی کو دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلومات نہ ہو. چلو آپ ہمیں بتائیں, آپ سے ہم سوالات کرنے کہ وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی. وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں؟ داڑھی بھی اور خوشبو لگانا. بالکل, داڑھی, یہ جو داڑھی ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں. خوشبو بھی آقا کریم کی سنت ہے. تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے, ٹھیک ہے.
वो भी आका, ये भी आका करीम की सुन्नत है। माशाल्लाह। अच्छा ध्यान भी आप हमें एक और सवाल बताएं, हम नमाजें पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाजें, जी बेशक। इनके अंदर गैर मुअक्कदा सुनते आती हैं। जी जी तो बिल्कुल आती है। हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो नमाज की गैर मुअक्कदा की मालूमात नहीं होती, तो आप उसके बारे में बता दें, गैर मुअक्कदा जो सुनते हैं वो कौन कौन सी हैं? गैर मुअक्कदा सुनते हैं, एक तो असर की नमाज में और ईशा की नमाज में आती है। बिल्कुल। जी। असर की नमाज में जो पहली 4 सुनते हैं वो गैर मुअक्कदा सुनते हैं, ईशा की नमाज में भी जो पहली 4 सुनते हैं वो भी गैर मुअक्कदा सुनते हैं। माशाल्लाह। अच्छा आप बताएं वो कौन से नबी है जिनको उनकी वालदा ने संदूक में डाल के पानी में बहा दिया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने महराज करवाई थी, उसके बाद वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने एक झलक दिखाई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप हमें ये बताएं कि आपने आलम का कोर्स करा हुआ है या आप इस निकाह पीर से मशहूर हुए तो आपने ये अपना मशहूरी जी, बना दी? आलिम का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कर रहा हूँ, मेरा दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पूरा नहीं हुआ, अब स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा साल है, अब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। तो ये कौन सी जगह पे आप कर रहे हैं आलम का कोर्स, जो है आप कहाँ पर कर रहे हैं? जी घर में मैंने ट्यूटर रखा है, घर में पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो जी नाज़रीन कराम, ध्यान भाई से अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सवालात कर रहे हैं वो कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे सवालात करने ये एक हमारे दिमाग यानी कि हमारे अंदर के सवाल होते हैं जो हमें बार बार घूम रहे होते हैं कि निकाह पीर इतना मशहूर है, सोशल मीडिया पे आए हुए, तो इसकी वजह क्या है? पैसे के पीछे है या इनकी कोई अल्लाह तबारक व ताला ने इनको कोई करामात दी है? तो जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें कुछ चीज़ें नज़र ऐसी आई कि निकाह पीर जो है वो कहता है कि सोशल मीडिया से भी 1 रुपया इनकम नहीं करते। अच्छा निकाह पीर आप हमें ये बताएं, कुछ दिनों पहले यूट्यूब के ऊपर बड़ा पंगा डाला हुआ था, आपने खुद देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि निकाह पीर जो है इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है या इस तरीके की बातें कर रहा है। आपके साथ भी एक वीडियो बनी थी और इसी तरीके से हक खतीब के साथ वीडियो बनी और लोग कह रहे हैं कि हक खतीब के बाद दूसरा पीर यानी कि दूसरा पीर भी, की क्या वजह है इसकी? वो आप उस वीडियो की तो बात नहीं कर रहे, वो जिन भाइयों ने हमें घर बुला के वो कह रहे थे हमने सवाल जवाब करने हैं, उस वीडियो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये उनका भी जैसे आप अपने चैनल के चक्कर में आया, उनका भी यही चक्कर था, उन्होंने सोचा बेचारों को कोई और काम तो मिलता नहीं है, जब ਜਦੋਂ हर पासों रह जाते ने तो फिर उन्होंने मैं याद आ जाना, तो फिर एवं झूठ मूठ के घर सद के जी सवाल करने ने, बस उन्होंने लड़ाई करनी थी, लड़ाई हो गई है, उनकी वीडियो वायरल हो गई है, बस उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको ये चैनल चलाना था वो उनका चल गया है बेचारों का मेरी वजह से, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से उनका चैनल चला, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा निकाह पीर आप में एक बात बताएं कि आप निकाह पीर जो है ये आपका घर से नाम रखा गया था या निकाह पीर के नाम से मशहूर हुए? तो ये निकाह पीर आप सैयद ज़ात से निकाह पीर बोलने की क्या वजह है? जी मैं कोई सैयद नहीं हूँ, मेरे खानदान में ना कोई और पीर है, मैं अकेला पीर हूँ, वो भी मैं पीर नहीं हूँ, मैं तो हजूर का गुलाम हूँ, हजूर की शानें बयान करता हूँ। तो मैं जब भी बयान करने जाता तो लोग 1-2 बंदे आ जाते, मुझसे दम करवाते, दुआ करवाते, तो अल्लाह पाक हजूर का सदका उनको शिफा अता फरमा देता, तो बस वहीं से फिर लोग निकाह पीर कहना शुरू हो गए, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, अभी भी मैं बच्चा ही हूँ, तो वो मुझे निकाह पीर कहते थे, यानी कि पीर है छोटा पीर, निकाह छोटा पीर। ये फिर वेला मुंडा उसने बाकी अपनी काफ़ी वीडियोस में बोला है, वो वीडियोस फिर वायरल हो गए हैं, बस फिर पूरी दुनिया पे निकाह पीर बस। तो और यहाँ तक कि अब तो मेरे घर वाले, मेरे अम्मी अबू, मेरे चाचू सारे मुझे निकाह पीर कहते हैं, तो वो बस निकाह पीर मेरा नाम ही बन गया है। आप हमें बताएं, हमें नहीं पब्लिक को बताएं और हमें भी बताएं, जी, जी। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने का रास्ता, यानी कि जिस तरीके से हमारे नबी ने बताया, क्योंकि पब्लिक इस वक्त आपके सामने, तो आप निकाह पीर से मशहूर है, लोगों को दम करते हैं, तो ये चीज़ें भी सिखाएं ना लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हजूर पाक की हमें सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, हजूर पाक के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, और बड़ी बात यह है कि हमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। आजकल बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो हकूकुल्लाह का ख्याल तो रखते हैं, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, ये हैं हकूकुल्लाह, वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते। हकूकुल इबाद कहते हैं अपने वालिदैन के हकूक, अपने रिश्तेदारों के हकूक, दोस्त अहबाब के हकूक, तो कुछ लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, हकूकुल्लाह को तरजीह देते हैं, तो लिहाजा इन दो का हमें ख्याल रखना चाहिए, और इसी पर अगर हम चलेंगे तो सरकार ने इंशाल्लाह सरकार के सुन्नतों पर चलेंगे, सरकार के नक्शे कदम पर चलेंगे,
तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत सारी बेहतरी होगी। सुभान चले आखिर पर मौला अली पाक की शान में एक शेर सुने। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है। बीबी फातिमा तो ज़हरा है कली, हुसैन हैं दो फूल तो गुलदान अली हैं। ये उम्मत सरकार ना मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। सुभान अल्लाह। जी ध्यान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे जो सवालात करें, हम वो सवाल लेके आए थे कि हमने सोचा था कि कहीं ध्यान भी फंसेंगे, इनको सवालात नहीं आएंगे। चलो ध्यान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे सवाल करें, कोई आप हमसे भी सवाल करें ना, कोई ऐसा सवाल करें कि हम भी सोचेंगे हमें भी दीन की कितनी मालूमात है। हम तो सवाल करने आ गए, हमें भी तो इनकी मालूमात आपसे मैं एक आसान सा सवाल करता हूँ, बिल्कुल आसान सा। हुजूर पाक ने अपने आखिरी नमाज जो पढ़ाई थी उसमें कौन सी सूरत पढ़ी थी? जो आखिरी नमाज पढ़ाई थी उसमें कौन सी सूरत पढ़ी? जी बिल्कुल आसान सा सवाल, बिल्कुल। सूरत फातिहा? नहीं, इसका मालूम नहीं, आप इसकी इस्लाह करा दें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नमाज में सूरतुल मुरसलात की तिलावत की थी। सुभान अल्लाह। और आखिरी खुतबा कब दिया था? आखिरी खुतबा सरकार ने 9 जिलहज को दिया था। माशाल्लाह। जी नाज़रीन का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दूर से आया था मैं ध्यान भाई का इंटरव्यू करने के लिए, और कोट मिटन शहर से मैं यहाँ तक पहुँचूँ, बड़ा सफ़र करके आया हूँ। और मैं जब यहाँ पर पहुँचा, मैंने इंटरव्यू करना था, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी करा है ध्यान भाई से, और दिल बहुत खुश हुआ है। हम वो नहीं कि अगर किसी के पास गए तो उसकी दिल आज़ारी करें या उसके पीछे पड़ जाएं। हमारा काम सिर्फ दीन इस्लाम की आप लोगों तक मालूमात पहुँचाना, क्योंकि हमने बड़ी सुनी थी, कहावतें भी सुनी थी और हकीकत भी सुना था। जब बंदा देखता नहीं है तब तक यकीन नहीं करता, वो कहता है जब देखूंगा तो यकीन करूंगा। अच्छा ये भी बता दें, जो लोग कहते हैं भी पीर साहब मिलते नहीं हैं, टाइम नहीं देते, भाग जाते हैं, ये भी बता दें। चलें, आप इतनी दूर से आए हैं, आपने कितनी बार बोला है मुझे कि मैंने इंटरव्यू करना है, तो मैंने आपसे कोई मिन्नतें करवाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ध्यान भाई के पास आई हूँ। मैं जैसे अंदर इंटर हुआ तो फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और वो दम करवा रहे थे। तो जब फैमिली आई हुई तो इन्होंने हमें 2 मिनट बाहर बिठाया। फैमिली जब अपना दम करवा लिया उसके बाद हमें अंदर लेके आए और हमने इनसे इंटरव्यू का कहा। तो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला जी बिस्मिल्लाह आप आ जाएं और इंटरव्यू कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़ी ख्वाहिशात रख के आए थे। सोशल मीडिया की बात तो पीछे, वैसे हकीकतन बता रहे हैं कि हम जो है मोहब्बत से भी आए थे, क्योंकि हमने बड़ा ध्यान भी को सोशल मीडिया पे देखा था। और अगर कोई मेरे चैनल के थ्रू से देख रहा है तो तारीफ से अल्लाह की ज़ात की, कोई इंसान ऐसा बड़ा नहीं है जिसकी तारीफ करें। अगर करनी है तो हमारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी चाहिए और तमाम सहाबा अनबिया कराम की करनी चाहिए। अगर आज की उम्मत में कोई इंसान है तो उसकी जो यानी कि उसकी कोई तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो इनकी मैं ध्यान भाई की तारीफ कर रहा हूँ। हकीकतन में हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हुआ। इन्होंने जो है यहाँ पर जो पब्लिक आई हुई थी और जिस तरीके से इन्होंने दम कराया, ये चीज़ें हमने देख के अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हुए। जिन्होंने का अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद मिनटों का पैगाम था और इंटरव्यू था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो आप लोग आगे लोगों तक शेयर करना, ताकि ध्यान भाई का ये पैगाम लोगों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोट मिठन तो साढ़े मेहमान आए ने कोट मिठन शरीफ तो ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਟ ਮਿਠਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ फरीद जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अंकल उन्हीं आए ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी नगरी तो कोट मिठन शरीफ तो ते कोट मिठन शरीफ मैंने एक वाकिया याद आ गया है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप ना कोट मिठन च रहिंदे सन ते आप दे इलाके च ना एक मलंग रहिंदा सी। मलंग कोट मिठन शरीफ में एक मलंग रहता था और उसकी जुबान पर एक जुमला भी था, ईद कड्डन। क्या बात, ये सराइकी का लफ्ज है, ईद कड्डन मतलब ईद कदों होगी। तो उसने हर एक से पूछना कि ईद कड्डन, क्या बात, ईद कड्डन। किसी ने उसे गाली दे देनी, किसी ने थप्पड़ मार देना, किसी ने मुस्कुरा के चले जाना, किसी ने धक्का दे देना, किसी ने बट्टा मार देना। उसकी किस्मत अच्छी के कोट मिठन का शहजादा, कोट मिठन का दुल्हा
ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह बाजार आ गए। अब आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। उसने दूर से फकीर का चेहरा देखा, करीब आकर कहता है, साईं ईद कढण, अल्लाह, साईं ईद कढण। आपने फरमाया, आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, ओ बेलिया यार मिले जडन। सुभान अल्लाह। उसने क्या पूछा? सही ईद कढन। फरमाया बेलिया यार मिले जडन। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर पूछता है, साईं ए यार मिले कढन, अल्लाह, यार मिले कढन। आपने उसे सर से लेकर पांव तक देखा, फिर फरमाया, ओ बेलिया मैं मर्रे जडन। क्या बात है। उसने क्या पूछा? सही ईद कड्डन। फरमाया बेलिया यार मिले जडन। अब वो फिर पूछता है, सही यार मिले कड्डन। फरमाया, ओ बेलिया मैं मर्रे जडन। क्या बात है। अब वो फिर पूछता है, साईं साईं ए मैं मर्रे कड्डन, क्या बात है। मैं मर्रे कड्डन। फरमाया, ओ बेलिया यार तक्के जड्डन। सुभान अल्लाह। क्या उसने बात पूछा, सही ईद कड्डन। फरमाया बेलिया यार मिले जड्डन। उसने फिर पूछा, सही यार मिले कड्डन। फरमाया बेलिया मैं मरे जड्डन। अब वो फिर पूछता, सही मैं मरे कड्डन। फरमाया बेलिया यार तक्के जड्डन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ध्यान खान ने जो मेहमान आए हुए थे उनको एक वाक़या सुनाया बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का। मेहमान हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। से बताना खुशी हुई है वाक़या सुन के? माशाअल्लाह, बहुत खुश हैं। ये कोट मिठल से मिलने के लिए ध्यान बेटे को आए हैं। ध्यान बेटे का इंटरव्यू किया भाई ने, गपशप लगाई है। अब इनसे पूछते हैं, अंकल जी कैसे है? ठीक हो, खुश हो ना? कोई मसला मसाइल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खुशी थी ये ध्यान बेटे को मिल के? भैया तुसा दसो। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुशी थी है। अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान भी ने सबको इंटरव्यू दिता है।